Good morning, students. Today we are going to discuss some application of Lagrange's equation. So first we are going to take the case of a harmonic oscillator, and we have to find its equation of motion, its angular frequency, and time period by the use of Lagrange's equation. So here we consider a particle of mass m is executing simple harmonic motion. Suppose this is its mean position and the particle moves back and forth along x-axis about its mean position. Then the kinetic energy and potential energy of the particle can be written as we know, kinetic energy is half v square, which is represented by capital T. Since the displacement is along x, therefore the velocity v, which is equal to dx by dt, can be written as x dot. So T is equal to half mx dot square. Now potential energy, as we know, when the particle executes harmonic motion, then the force acting on it is given by Hooke's law, F is equal to minus kx. From here we can find its potential energy, and which will be equal to half kx square, where k is spring constant. Then the Lagrangian of the harmonic oscillator can be written as T minus V. From above, if we put value of kinetic energy and potential energy, we obtain Lagrangian L, which will be equal to half mx dot square minus half kx square. From here we can clearly see that L is function of x and x dot, that is we have only one generalized coordinate x. By differentiating L with respect x dot, we have value of curly L by curly x dot, which will be equal to 1 by 2m, and x dot स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा वो होगा 2x डॉट. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ही आ जाएगा mx डॉट. और अगर इसका हम टाइम के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी टी लेते हैं करली एल बाई करली एक्स डॉट का, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट. और डी बाई डी टी अगर हम इसका लेंगे तो एम तो कांस्टेंट है, एक्स डॉट का हो जाएगा एक्स डबल डॉट, यानी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम एक्स डबल डॉट लिख रहे हैं. तो इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया. सिमिलरली इससे एल से हम निकालेंगे करली एल बाई करली एक्स. तो करली एल बाई करली एक्स यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 2 के, और एक्स स्क्वायर का जो है ये हो जाएगा 2x. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा माइनस के एक्स आ जाएगा. इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया हमने. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन Lagrangian equation for generalized coordinate x, the equation is given by d by dt of curly L by curly x dot minus curly L by curly x is equal to 0. And when we put the values of first term and second term of Lagrangian equation from equation 1 and 2, we have mx dot mx double dot plus kx is equal to 0. So by dividing m throughout the equation, we get x double dot plus k by m x is equal to 0. So students, this is a simple equation representing the motion like as x double dot plus omega square x is equal to 0, where omega will be its angular frequency. So by comparing this equation with the equation x double dot plus omega square x is equal to 0, अगर हम इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी के बाई एम, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमारी आ गई
ये आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज रूट के बाई एम, क्योंकि यहाँ से अगर आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो के बाई एम होगी, तो ओमेगा हमारा हो जाएगा रूट के बाई एम। एंड द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी रिटन एज कैपिटल टी जो टाइम पीरियड होगा हमारा वो होता है 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आई है उसकी वैल्यू आई हमारे पास रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड जो है वो ऑसिलेटर का आ जाएगा 2 पाई रूट के बाई एम। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन जो हमने सोल्व आउट की है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कि अगर कोई पार्टिकल हमारा हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करने लग रहा है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो मीन पोजिशन के अबाउट जब वो बैक एंड फोर्थ मोशन शो करेगा हमारा तो उस टाइम के ऊपर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा एक ऑसिलेशन का, यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम वो लेगा पार्टिकल हमारा, उसका टाइम पीरियड जो है वो हमारा आ गया 2 पाई रूट के बाई एम। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी ऑसिलेटर की आई है वो आ गई √k बाई एम। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के हम कैसे शो करेंगे कि सी हमारा एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये पेंडुलम जो हमारा वो फिक्स है। मान लो सी के ऊपर हमने कोई स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग से हमने एक एम मास को अटैच कर दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है और जो मास हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है वो एम है। अब हमने क्या किया कि मान लो ये स्ट्रिंग से जो मास है हमारा कुछ इस तरह से हैंग था, यहाँ पर मास है, ये स्ट्रिंग यहाँ अटैच है, तो हमने इसको कुछ यू मोशन दे के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे पेंडुलम जो है ये स्विंग करेगा। तो इस स्विंगिंग पेंडुलम का अगर मीन पोजीशन के अबाउट हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा मान लेते हैं तो वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है, जो एंगल हमारा बन गया BCA, ये हमारा थीटा एंगल हो गया। स्ट्रिंग की लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया, जो मास है हमारा वो हमने M से डिनोट किया है। डाउनवर्ड जो है यहाँ इधर ये हमारा mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी हमारी वो इधर एक्ट कर जाएगी। तो पार्टिकल जो है आपका O से A की तरफ जाएगा, फिर A से O की तरफ, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा O की तरफ, फिर O से A की तरफ। इस तरह से जो है इसका मोशन जो है वो सेटअप होगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं पार्टिकल का, इसकी मीन पोजीशन यानी O से जब ये A के ऊपर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो वो इस आर्क के अलोंग लेंगे, अलोंग द आर्क OA, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी एज वी नो आर्क लेंथ क्या होती है हमारी रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल, ठीक है, क्योंकि एंगल जो हमारा वो होता है आर्क बाई रेडियस, तो आर्क यहाँ से आ जाएगी एंगल सबटेंड मल्टीप्लाई बाई द रेडियस। सो हेयर रेडियस इज L and angle is theta, therefore we can write the displacement S as L theta. So clearly S is equal to L into theta, the displacement of the particle from its mean position when it executes, it swings like as simple pendulum. Then the velocity of mass m will be d by dt of displacement, and displacement is our L theta, therefore V is equal to L d theta by dt, and we write d theta by dt as theta dot. Here theta dot is d theta by dt, angular velocity. So V जो है हमारा वो आ गया हमारे पास L theta dot। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी पार्टिकल की, इसका मास m है, उसको कैपिटल T से लिखेंगे, वो होगी हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m और v की जगह जो है हमारा आ जाएगा L थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसके अबाउट हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है 0। तो अब इस केस में मैं उसका रेफरेंस पॉइंट जो है सेट करके चल रहा हूँ O के ऊपर यहाँ।
तो अगर ये रेफरेंस लेवल सेट कर दिया तो अगर हम ओ से देखेंगे, इसका मोशन स्टडी करेंगे तो हमें पार्टिकल ए तक जाता दिखाई देगा, यानी इस हाइट पे ओ बी हाइट तक जो है पार्टिकल ऊपर जाता दिखाई देगा और वहीं से फिर नीचे आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh, तो h की जगह जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा OB, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgOB। और OB जो है OB को हम लिख सकते हैं OC माइनस BC। इस कंप्लीट में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट हम कर दें तो हमारे पास ये बच जाएगी OB, तो OC माइनस BC। अब OC तो क्या है, L है स्ट्रिंग की लेंथ, और BC को हम यहाँ इस ट्राइंगल से, जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं ABC, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो BC है हमारा ये बेस का काम करेगा, और CA जो है अगर L है तो BC हो जाएगा L cos थीटा। तो ये वैल्यू OC की और BC की हम यहाँ इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी की में, तो ये हो जाएगा mg L माइनस L cos थीटा। तो L अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mg L और 1 माइनस cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो हमारी थी हाफ ml² थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन को जो है लिख सकते हैं। तो लैग्रेंजियन हमारा जैसे हमें पता है कि ये होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो L की वैल्यू T माइनस V, तो T की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे हाफ ml² थीटा डॉट स्क्वायर, और V की वैल्यू जो है हम यहाँ से पुट कर लेंगे mgl 1 माइनस cos थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा लैग्रेंजियन। तो ये लैग्रेंजियन हमारे पास आ गया है। तो क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है हमारा थीटा है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज वेलोसिटी जो है वो थीटा डॉट है। तो अगर हम यहाँ से करली L बाय करली थीटा डॉट निकाल लेंगे, करली L बाय करली थीटा डॉट, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम ml² थीटा डॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ml² थीटा डॉट, ये बचेगा। तो करली L बाय करली थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से आगे लैग्रेंजियन से हमारी ml² थीटा डॉट। तो हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन के लिए चाहिए d/dt ऑफ करली L बाय करली थीटा डॉट। तो अब इसका d/dt ले लेंगे, तो m भी कॉन्स्टेंट है, L भी कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा ml², और d थीटा डॉट बाय dt, तो थीटा डॉट का d/dt है तो एक और डॉट आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी ml² थीटा डबल डॉट। सेकेंड टर्म जो इक्वेशन में हमें चाहिए वो है अपनी करली L बाय करली थीटा। तो यहाँ थीटा की जो टर्म है वो हमारी सेकेंड टर्म के अंदर है। तो यहाँ से जब करली L बाय करली थीटा निकाल लेंगे तो mgl एज इट इज 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस साइन है कि ये एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस mgl, और d/d थीटा ऑफ cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा होगा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा करली L बाय करली थीटा इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ से और यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन, जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा के लिए लिखी जाएगी d/dt ऑफ करली L बाय करली थीटा डॉट माइनस करली L बाय करली थीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी ml² थीटा डबल डॉट पहली टर्म के जगह माइनस करली L बाय करली थीटा की वैल्यू माइनस mgl साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, so that will be equal to plus mgl sin theta. If we divide this equation by ml² throughout, then from here ml² remove, the only term which will be remaining is theta double dot, and here m will be cancelled out and 1 power of L is also eliminated. We have g by L sin theta, which is given on next page here. So the equation of motion will be theta double dot plus g by L sin theta. So this represents the equation of motion of a simple pendulum. तो ये आ गई हमारी जनरल इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये आई है सिंपल पेंडुलम के लिए, अगर सिंपल पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का वो बहुत स्मॉल है, एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल होगा तो इसका मतलब जो थीटा एंगल है ये, यानी हमने इसको बिल्कुल थोड़े से एंगल पे ऐसे करके छोड़ दिया ऐसे ऐसे, तो थीटा भी स्मॉल होगा। और हमें पता है जब थीटा आपका बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली
थीटा को कन्वर्ट कर जाता है व्हेन थीटा अप्रोचेज टू 0, हमें ये पता है। तो ये यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम ये कंडीशन यहाँ पर पुट अप कर देंगे कि फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस वी विल हैव थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आगे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं फिर से वही इक्वेशन हमारी कि एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर है हमारा थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जी बाई एल। तो ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा यहाँ से बन जाएगा रूट जी बाई एल। और हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, टी इज 1 बाई न्यू। और न्यू जो है हमारा वो होता है ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू की वैल्यू आएगी हमारी ओमेगा बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा हमारा आ गया यहाँ से रूट जी बाई एल। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एल ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। सो हेयर आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो।